صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی پرفارمنگ آرٹس شاعری جناب شیخ محمد صادق ایس ایم صادق پاکستان کے ممتاز شاعر و نغمہ نگار ہیں. آپ کی شعری ذہانت اور جنوبی ایشیا کی موسیقی اور ادب کو لازوال گہرائی، ثقافتی ہم آہنگی اور روحانی حسن سے مالا مال کیا ہے. آپ نے پنجابی، اردو اور ہندی میں 70,000 سے زائد گیت، نعتیں اور صوفیانہ کلام تخلیق کیے، جن میں ایک سکندی، میلے کاغذ، اپنا خیال رکھنا، چروکنے دکھ اور نعتیہ کلام ایک خواب سنانا شامل ہے. آپ کی شاعری جو اپنی جذباتی شدت، ثقافتی صداقت اور روحانی جوہر کے لیے مشہور ہے، بر صغیر کی عظیم ترین آوازوں بشمول نصرت فتح علی خان، میڈم نور جہاں، عطاء اللہ سقیفی، راحت فتح علی خان، شوکت علی اور حامد علی خان کی بدولت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہے. شاعری کے شعبے میں آپ کی بہت خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شیخ محمد صادق ایس ایم صادق کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا فرمایا. جناب محمد صادق ارے سر یہ ذرا پکڑیے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم لالا جی. ماشاء اللہ استقبال ہو رہی ہے. سر سلامت رہے جی. یہ آپ کا سر سلامت میں ادھر لگا. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا عارف لوہار، اور آپ کو اور مجھے ڈھیر ڈھیر مبارک. اسپیشلی ایس ایم صادق صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، اور ہماری طرف سے اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے ڈھیر ڈھیر مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ایس ایم صادق، اور آج میں تھوڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کہ 50 برس میں نے محنت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ مجھ سے پیار نہ کرتے، میرے کلام کو سنتے نہ، تو میں اس مقام تک اور اس ایوارڈ تک کبھی پہنچ نہ پاتا. اور سب سے پہلے میں اپنے ان سنگروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شعر اکیلا کچھ نہیں ہوتا، کتابیں کی الماریاں بھری ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کا کلام نہیں گاتا. آپ کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو ہزاروں شعر ملیں گے، اسی طرح کتابوں میں ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں بیچارے. تو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے لالا جی عارف لوہار جیسے سنگر نے میرے گانے گائے، اور مجھے پتہ ہی نہیں کتنے گائے ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب، اللہ ان کو کروڑوں جنتیں نصیب کرے، انہوں نے اس وقت میرا کلام گایا جب میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. 14-15 سال کی کوئی ایج نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں عطاء اللہ عیسیٰ خلوی صاحب کا ذکر ضرور کروں. انہوں نے بھی بڑی محبتوں سے نوازا، اور میرے انہوں نے بے شمار گانے گائے. اگر میں گانوں کا ذکر کروں گا تو یہ بلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. تو آج جب میں نے یہ ایوارڈ مجھے ملا ہے، تو لالا جی نے میرے لیے مجھے ریسیپشن دی ہے، اور یہ محبتیں اور میرے گھر میں دیگیں بھی بھیج دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پیار کرنے والا بندہ، ایسا درویش آدمی، کسی کی نہ برائی کرنی ہے. مجھے تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کبھی کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی بغض نہیں. ہاں، میری عادت ہے، میں کسی کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں. شاید مجھے کوئی برا بھی سمجھتے ہیں لوگ، یار یہ جو کہتا ہے کہہ دیتا ہے. تو لیکن میں نے ان کے منہ سے کبھی کسی کی بد تعریفی نہیں سنی. اور اللہ میرے بھائی کو ہمیشہ ان کا جو گراف ہے وہ کبھی نیچے نہ آئے، اور یہ اپنے بچوں کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہیں، اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں.
जिस गुलशन में कभी खजान आए, ये हमेशा बहार से और खुशबू वाले फूलों से महकता रहे। तो इंशाल्लाह मैं अभी जाऊंगा अपने दफ्तर के नीचे। कुछ लोगों ने एहतमाम किया है कि वो उन्होंने मेरे कुछ जैसे होता है वो सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो छाबड़ी वाला है, जो रेड़ी वाला है, जो नीचे है, सबकी मोहब्बत है क्योंकि मैं अवामी शायर हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी सारे मनातर दिखाऊंगा जी। सलाम। जी लाला जी का सुनो। मेरी तरफ से ढेर ढेर मुबारक मेरे मुल्क की पहचान और जिनको पूरी दुनिया में मोहब्बत से नवाजा जाता है और प्यार करते हैं लोग, और इनकी शायरी से इंस्पिरेशनें लेकर कई लोग जो हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मेरी धरती का वो सपूत जिसने अपनी माँ बोली की बहुत खिदमत की, सूफ़ी से लेके और लोकगीत तक अपने कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया। और मुझे बड़ी खुशी है, हुकूमत पाकिस्तान का बेहद मशकूर हूँ कि ऐसे शख्सियात को जब आप नवाजते हैं तो आप अपनी धरती के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ रहें इनसे प्यार करते रहें, मुझसे प्यार करते रहें। हम आपकी मोहब्बत के जो हैं असीर हैं, बस आपकी मोहब्बत है जो सबसे बड़ा एवॉर्ड होता है हमारे लिए। अल्लाह ताला जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, अल्लाह के करम से और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। भाई इधर नाल आना नाल
अच्छा अबू बैठो अबू 25 बदतमीज बच्चा मैं फिर 3-4 बार ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਰਵਾਨੀ ਲੋ ਜੀ ਆਏ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਉਹ ਦਾਦਾ ਬੁਵਾਰੀ ਕੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਚਲੋ ਜੀ ਦਾਦਾ ਬੁਗਾ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਾ ਬਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਆਇਓ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਤਾਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब मैं गवर्नर हाउस से निकला हूँ तो आरिफ लोहार साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे सैकड़ों गीत गाए। तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन दी, बहुत प्यार किया, बल्कि उन्होंने घर में खाना भी भिजवाया और कोई तकरीबन 2 मन मठियाई भी दी जो कि मैं रास्ते में बांटता आया हूँ और अभी भी वो घर में पड़े हैं टोकरे। तो ये मोहब्बत होती है नाज़रीन। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं इस अवार्ड तक कभी भी ना पहुंच सकता। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसे सदारती अवार्ड कहा जाता है। सदर इसको जारी करता है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके साथ एक हैवी अमाउंट भी होती है। तो अब मैं अपने घर पहुँचा हूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सब महल्लेदारों का। इन्होंने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, तो इनकी आँख कभी दुख का आंसू ना देखे। और जैसे कि मेरे नबी का फरमान है कि जो बंदा अपने हमसायों के साथ ठीक है, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बहुत आसानियाँ करेगा उसके लिए। यहाँ पे मैं एक शेर भी पेश करता हूँ कि फल खाना ना होया नसीब तेनू, तेरे हत्थां दे बूटे ते लाए रह गए, औखे वेले तू जदों आवाज़ मारी बड़ी दूर ओ मां प्यो जाए रह गए। कि जिन्हां रुखां दे पत्तर झड़ जांदे उन्हां कोल ना कदे भी साए रह गए, दिन हशर दे होवेगी पुछ सादक, एक दिन जे भुखे हमसाए रह गए। तो हम सबको अपने हमसायों का ख्याल करना चाहिए। मेरा मोहल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं यहाँ पे, कभी सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। स्टार्ट। बहुत बहुत मुबारक खैर जी मुबारक जी, आपको। खैर मुबारक। वी आर वेरी प्राउड जी, तमाम महल्लेदार हम बहुत खुश हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग SM सादिक साहब, हमारा एक घर है, एक फैमिली है, इनको सदारती अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और मुल्क का नाम रोशन किया है। हम सब महल्लेदार आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बहुत खुश हैं और तमाम मुबारक पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। हाँ जी अली एहसन पकड़ साइड पे रखी जी वालेकुम सलाम।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you जी, thank you। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सबके सुरों पे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जी, खैर, बहुत शुक्रिया। अली भाई नाज़रीन, ये हमारे मोहल्ले के चेयरमैन भी हैं। हाँ जी। ये मेरे बेटों की तरह है। इनकी वालदा ऐसे है जैसे मेरी सकी बहन है। हम एक मोहल्ले में एक घर की एक फैमिली की तरह रहते हैं। आ जाए जी। ये जी शान साहब हैं, बहुत बड़ी मालदार पार्टी है ये, और बड़े प्यार वाले हैं और मेरे बेटों की तरह हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं जी। बहुत शुक्रिया बेटा। खैर, ये हमारे बिल्कुल हमसाए हैं, मिनास अरशाद, ये चौधरी साहब है, हमारे साथ ही रहते हैं। वो बीमार है, मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करे कि वो बहुत जल्द सेहत याब होकर हमारे दरमियान हो। अगर वो सेहत याब होते तो सबसे पहले इधर खड़े होते। अल्लाह इनके बाप को सलामत रखे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया। अभी आ जाओ अंदर, कोई साल ख्वाहिए पे हैप्पी बर्थडे टू यू। यस। चलो प्लेटां पा के दियो साहब। ये पाकिस्तान का सदारती अवार्ड इसे कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए लोग मौत के मुंह तक चले जाते हैं और उनकी वफात के बाद नासिर काज़मी एक शायर थे जिनका कलाम था, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। और खान साहब ने भी उनका कलाम गाया, मेरी ज़िंदगी है तू। जब मेरी सीवी गई गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ कि असल नाम मेरा है शेख मोहम्मद सादिक, और बैंकों में और जो गवर्नमेंट के कागजात होते हैं इसमें हमेशा असल नाम लिखा जाता है। तो शेख मोहम्मद सादिक के नाम से मुझे कोई जानता नहीं था। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है कि इन बंदों को अवार्ड मिलेंगे। कितने हज़ार बंदों में से वो मैं शॉर्ट लिस्ट में आ गया। तो मुझे कॉलें भी आई, ये कैबिनेट होती है जो इंक्वायरी करती है कि क्या इस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बहुत से अदारे हैं जिनसे ये गुज़र के सारा प्रोसीजर हो के आता है। तो जब सदर ने साइन करने थे तो मेरा नाम जब देखा तो उन्होंने कह रही शेख मोहम्मद सादिक कौन है। तो वो कोई बंदा मुझे जानता नहीं था। फिर एक साल गुजर गया। जब मेरी सीवी दोबारा गई तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये कॉलें आती हैं कभी इस्लामाबाद से, कभी लाहौर से, मुख्तलिफ अदारे कॉल करते हैं जी। तो मैंने कहा जी आप प्लीज़, मैंने इतना काम किया है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार से भी ज़्यादा मेरे कलाम हैं। बल्कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी के कलाम आपके लिखूं छोटे मोटे तो मेरे लाख से ज़्यादा कलाम बनते। तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने भी मुझे कॉल किया ना, उसने सबसे पहले ये मुझे कहा कि जी आपको तो बहुत पहले अवार्ड मिलना चाहिए था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा नाम शेख मोहम्मद सादिक के साथ ब्रैकेट में SM सादिक लिखें। इस दफ़ा जब इंक्वायरी आई तो फिर उन्होंने मेरा नाम ब्रैकेट में शेख मोहम्मद सादिक और SM सादिक लिखा। तो एक वक्त होता है हर चीज़ का। मौला अली का कौल है कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा ये किसी को नहीं मिलता।
तो मेरे रब का करम हुआ, इस दफ़ा मैं 14 अगस्त को ये अवार्ड अनाउंस हुआ। 14 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट होती है और ये अवार्ड 23 मार्च को मिलता है। मुल्की हालात की वजह से इस अवार्ड की 2-3 डेटें चेंज हो गई। तो अल्लाह का बहुत करम हुआ, मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। और ये अवार्ड आप लोगों की मोहब्बत से मुझे मिला है। मैं समझता हूँ ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये उन लोगों का अवार्ड है जिन्होंने मुझे अपने ब्लड से ख़त लिखते थे जब ख़तों का ज़माना था। अब तो सोशल मीडिया है, तो चिट्ठियाँ आती थी, इतनी चिट्ठियाँ आती थी। मुझे याद है आज भी एक तावला ईसा खेलवी साहब का गाना था, जदों इस दुनिया तो वखरे में होना है। तो एक आदमी ने मुझे 100 गज़ लंबा ख़त लिखा और उसमें उसने अपने ब्लड से मेरे गानों के जो मुखड़े थे, जो शेर थे वो लिखे। तो मैं इस अपने अवार्ड को अपने चाहने वालों के नाम करता हूँ और उन सिंगरों के नाम करता हूँ जिन्होंने मेरा कलाम गाकर मुझे पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दिया। अगर ये सिंगर मेरा कलाम ना पढ़ते तो मैं कभी इस अवार्ड तक नहीं पहुँच सकता था। तो मैं आप सब इस अवार्ड को आप सब चाहने वालों के नाम करता हूँ, अपने सिंगरों के नाम करता हूँ। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मुझे इसी तरह मोहब्बत देते रहे तो मैं इंशाल्लाह मरते दम तक लिखता रहूँगा। आपका SM सादिक बहुत शुक्रिया।